السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ بی بی کیو سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ گلزار ہاؤس کی ایک عمارت میں آتش زدگی، 17 افراد ہلاک، کئی زخمی۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ چلانے تحقیقات کا آغاز۔ صدر مجلس، انچارج وزیر، مرکزی وزیر اور دیگر قائدین نے مقام واقعہ کا کیا دورہ۔ آتش زدگی واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے ورثاء کو فی کس 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا۔ مستقبل میں ایسے حالات دوبارہ رونما نہ ہوں، اس کے لیے اقدامات کریں۔ بھٹی وکرمارکا کی پریس کانفرنس، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بھی اظہار افسوس۔ گلزار ہاؤس واقعے پر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی حکومت سے نمائندگی، مہلوکین کے ورثاء کو معاوضہ، زخمیوں کے بہتر علاج کو یقینی بنایا جائے، اس طرح کے واقعات کا تدارک ہو۔ اور انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر میں حسیناؤں کا استقبال، سیکریٹریٹ میں بھی آمد، تلنگانہ پھر آنا کے لگائے نعرے۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ جنوبی شہر کے مشہور تجارتی علاقے گلزار ہاؤس کی ایک عمارت میں اتوار کی صبح آتش زدگی کے ایک سنگین واقعے میں 17 افراد ہلاک ہو گئے اور دیگر زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 مرد، 5 خواتین، 8 بچوں میں 3 لڑکے، 5 لڑکیاں شامل ہیں۔ ان میں 1.5 سال کا لڑکا بھی شامل ہے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی، ریاستی وزیر انچارج حیدرآباد پونم پربھاکر، مرکزی وزیر کشن ریڈی،
मेयर विजय लक्ष्मी, रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, पुलिस व फायर सर्विस के आला ओहदेदार ने इस इलाके का दौरा किया। महलूकीन के विरसा को दिलासा दिया। महलूकीन के नाम व उम्र इस तरह हैं: 70 साला प्रहिलाद, 70 साला मनी, 65 साला राजेंद्र मोदी, 60 साला सुमित्रा, 31 साला अभिषेक, 35 साला शीतल, 35 साला वर्षा, 36 साला पंकज, 32 साला रजनी, 7 साल के हेमे, 4 साला प्रियांश, 4 साला ऋषभ, 4 साला इड्डू, 3 साला आरुषि और 3 साला अनुयान और 1.5 साला प्रीतम शामिल हैं। जख्मियों को कंचनबाग, मलकपेट और बंजारा हिल्स के अस्पतालों में शरीक करवाया गया है। तमाम महलूकीन के पोस्टमार्टम करके लाशों को विरसा के हवाले कर दिया गया है। तमाम जख्मियों को अस्पताल उस्मानिया ले जाया गया था, बाद में उन्हें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आग लगने की इत्तला पर मुगलपुरा, हाई कोर्ट, गौलीगुड़ा, सालार जंग म्यूजियम, हशमतपेट, राजेंद्र नगर सेक्रेटरीट, लंगर हाउस से फायर इंजन्स तलब किए गए। 11 फायर इंजन्स, 1 रोबोट फायर फाइटर, 87 फायरमैन आग बुझाने में शामिल रहे। 2 घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजूहात का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। आइनी शाहिदीन के मुताबिक आग सुबह 6:17 पर भड़क उठी, जबकि यहाँ मुकीम एक ही ख़ानदान के तकरीबन 35 अरकान इस 2 मंजिला कदीम इमारत में महवे ख्वाब थे। इनमें तातीलात गुजारने उनके रिश्तेदार भी शामिल थे। गुलजार हाउस से चार मीनार की मशरक़ी सिमत वाक़े इस इमारत के नीचे मलगियात में मोतियों व जेवरात की दुकानें हैं। इमारत में दाखिल होने के लिए सिर्फ 3 फुट की छोटी गली है। इस गली में 2 बाइक्स भी थे जो जलकर तबाह हो गई। ये बताया गया है कि इस इमारत में बरक़ी के वायर बड़े बेतरतीबी से थे। हो सकता है कहीं शॉर्ट सर्किट इस वाक़े की वजह बनी हो। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने मछली कमान से चार मीनार तक इलाके की नाकाबंदी कर दी थी। गुलजार हाउस आग लगने के वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गहरे दुख का इजहार किया और महलूकीन के विरसा की मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 2-2 लाख रुपए और ज़ख्मियों को फ़ीकस 50,000 रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। इन्होंने ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की है। कांग्रेस कायदीन व कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने गुलजार हाउस आतिशज़दगी वाक़े पर गहरे रंज का इजहार किया। इन्होंने बेहतर इमदादी कामों और ज़ख्मियों के बेहतर इलाज के लिए हुकूमत को तवज्जो दिलाई है। महलूकीन के विरसा को पुरसा दिया, ज़ख्मियों की आजिलाना सेहतियाबी की तमन्ना की है। गवर्नर तेलंगाना ने गुलजार हाउस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। इन्होंने महलूकीन के विरसा से हमदर्दी का इजहार किया है, ज़ख्मियों के मुनासिब इलाज की हिदायत दी है। गुलजार हाउस वाक़े में 13 अफराद की जान बचाने वाले नौजवान हॉकर जाहिद के मीडिया में चर्चे हैं। इस नौजवान ने यह देखा कि इस इमारत से धुआं निकल रहा है। उसने अपने चंद साथियों को लेकर सब्बल की मदद से खिड़की तोड़ी, अंदर दाखिल हुआ। 2 मंजिला इमारत आग व धुआं में लिपटी हुई थी। उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और दूसरी मंजिल के 2 कमरों से 13 अफराद को, जिनमें चंद जख्मी हो गए थे, सलामती के साथ नीचे लाया। पहली मंजिल पर उसने एक ऐसा दर्दनाक मंजर देखा कि 2 कमसिन बच्चों को बचाने एक खातून ने इनको अपनी आगोश में समेटने की कोशिश की। इस कोशिश के दौरान ये तीनों मुकम्मल झुलसकर मौत की आगोश में चले गए थे। हम लोग फ्रेंड के साथ जा रहा था, 2 लेडी धरा हुआ था। उन लोग बोला भैया मेरा फैमिली अंदर, बच्चा है छोटा हुआ। तो हम लोग पूछा मैडम दरवाजा किधर है, गेट इधर से नहीं आ सकते, आँच पूरा इधर से आ गया। तो हम लोग शटर तोड़ के हम लोग इसको पूरा अंदर घुस गया। अंदर घुस गया आपने, फिर एक दीवार है, वो दीवार को हम लोग तोड़ के करके 5-6 ने पूरा सामान हथौड़ी मंगा के, पूरा सबल मंगा के अंदर घुस गए। हम लोग घुस गए, अंदर आँच बहुत था। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर भागे ऊपर। हम लोग इनो और मैं, हम लोग दोस्त थे, पूरे भागे। हम लोग ऊपर देखा तो आँच बहुत था। 1 घंटा वेट करे बाद में थोड़ा पूरा आ गए ये लोग। पुलिस का भी गुड वर्क था भाई, और पेरिशियन भी आ गया, पूरा कॉपरेट करे। अच्छा बस इतना है कि वो आँच भूत होने की तरफ से बचा नहीं सके। एक रूम में 7 लोग थे, 7 जने थे, और दूसरे रूम में 6 थे जी, और नीचे 2-3 थे बोल के सुनने में हम लोग तो उन लोग को बचाने में थे।
हफ्तेवारी तातील कॉलेज व स्कूल्स को गरमाए तातीलात के सबब सैकड़ों की तादाद में चार मीनार की सयाहत करने आए सयाहों पर इस वाक़े का बड़ा असर हुआ है। हुकूमत ने सयाहों और आम अफराद के लिए गुलजार हाउस से चार मीनार तक पैदल जाने वालों पर भी पाबंदी लगा दी थी। इस वाक़े पर इस इलाके के तमाम ताजरीन ने अपने कारोबार बंद रखे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गुलजार हाउस के करीब पेश आए आतिशदगी के वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला ने ज़ख्मियों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने की हिदायत दी। इन्होंने वज़ीर पूनम प्रभाकर से पेश आए वाक़े की तफसीलात हासिल की। रेवंत रेड्डी ने मुकामी मुतासरीन से भी इज़हार हमदर्दी किया है। वज़ीर आला ने पूनम प्रभाकर को हिदायत दी कि मुतासरा ख़ानदानों को महफूज रखने और फौरी इमदाद फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला ने IG नागिर रेड्डी को हुक्म दिया कि वो मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू कार्रवाई की निगरानी करें। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को फ़ोन करके हादसे के बारे में तफसीलात हासिल की हैं। खड़गे ने कहा है कि राहतकारी काम की पेशरफ्त के बारे में तफसीलात पेश करें। वज़ीर आला ने कहा है कि वज़रा पहले ही से राहतकारी कामों की निगरानी कर रहे हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आतिशदगी वाक़े में हलाक होने वालों के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। गुलजार हाउस में आतिशदगी का वाक़या होने के वज़ीर आला की हिदायत पर खम्मम का दौरा मुलतवी करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने मुकाम वाक़या पहुँचकर तफसीलात हासिल की। इसके बाद उस्मानिया हॉस्पिटल पहुँचकर मुकम्मल जायज़ा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि हलाक होने वालों के अफराद ख़ानदान की हुकूमत हर तरह मदद करेगी। इस वाक़े में 17 अफराद हलाक हुए हैं। फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया हुकूमत फराहम करेगी। भट्टी विक्रमार्का ने फायर सर्विस DG नागिर रेड्डी से हादसे के मुकाम की मुकम्मल तफसीलात हासिल की। नायब वज़ीर आला के हमरा वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा भी मौजूद थे। చనిపోయినటువంటి వ్యక్తులకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్కొక్క మనిషికి సంబంధించి 5 లక్షల రూపాయల వరకు ఎక్స్గ్రేషియా కూడా ప్రకటించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసింది. సరే వారి జీవితాలలో తిరిగి తీసుకొని రాలేము, కానీ సాధ్యమైనంత వరకు ఆ కుటుంబానికి ఎంతో కొంత వెసులుబాటు కల్పించడానికి ఈ 5 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ఒక ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రభుత్వ పరంగా ప్రకటించడం జరిగిందని మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా కేబినెట్ సహచరులందరితో మాట్లాడి 5 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియాని ప్రకటించమని వారు స్పష్టంగా చెప్పినటువంటి సమాచారాన్ని మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అలాగే సంఘటన జరిగిన మరుక్షణం నుంచే అటు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వారితో కానీ లేకపోతే ఇతర సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ వారితో కానీ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళతో కానీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్తో కానీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్తో కానీ నిత్యం మానిటరింగ్ చేస్తూ ఆ కుటుంబ సభ్యులతో కూడా ఫోన్లో ముఖ్యమంత్రి గారు పర్సనల్గా మాట్లాడటం జరిగింది. మంత్రులంతా దగ్గరుండి ఈ క్షేత్రస్థాయిలో కావాల్సిన ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. दूसरी जानिब सदर मजलिस व हैदराबाद के रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने गुलजार हाउस वाक़े की इत्तला पाकर इस इलाके का दौरा किया। इन्होंने मुकामी अवाम महलूकिन के विरसा से मुलाकातें की। इन्होंने इस वाक़े पर गहरे दुख व रंज का इजहार किया है। इन्होंने बताया कि ये ख़ानदान गुज़िश्ता 125 साल से नस्ल दर नस्ल यहाँ मुकीम रहा है। इन्होंने वाक़े की तफसीलात हासिल की। इन्होंने डायरेक्टर जनरल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स नागिर रेड्डी से इस वाक़े की जानकारी ली है। इस तरह के वाक़यात का मुस्तक़बिल में इर्तिकाब ना हो, इसके लिए इस इलाके की इमारतों को महफूज बनाने पर एक तरीक़ेकार पर अमल का हुकूमत को मशवरा भी दिया। इन्होंने ज़ख्मियों के बेहतर इलाज के लिए अहदेदारों को मशवरा दिया। बैरिस्टर अवीसी ने दवाख़ाने उस्मानिया पहुँचकर महलूकीन के पोस्टमार्टम का कार्रवाई को मुकम्मल करवाया। दवाख़ाने में वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, नायब वज़ीर आला व वज़ीर फ़ाइनेंस भट्टी विक्रमार्का, अरकान असम्बली अहमद बलाला, मीर जुल्फ़िकार अली और दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस ने महलूकीन के विरसा को एक्स ग्रेशिया का ऐलान करने और ज़ख्मियों को बेहतर इलाज के लिए इन वज़रा को तवज्जो दिलाई है, जिस पर दोनों वज़रा ने मुस्बित रद्द अमल दिया।
आज जो गुलजार हाउस में जो हादसा हुआ है, जिसकी वजह से एक ख़ानदान के 17 अफरादों की मौत हुई है और ये ख़ानदान इस इलाक़े में 125 साल से यहाँ पर आबाद है, तो बड़ी तकलीफ़देह बात है। और सिर्फ उस परिवार के 2 लोग ही बचे हैं। तो मैं अपनी तरफ से उन तमाम परिवार को कंडोलेंस ताज़ियत पेश करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि फायर सर्विस की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी डूज़ एंड डोंट्स रहेंगे उस पर फिर से असर देखना है, क्योंकि अभी डीजी फायर सर्विस बता रहे थे कि बहुत से जो लोगों की मौत हुई है वो बर्न इंजरी से नहीं हुई है, एसिफिक्शन से और फ्यूम्स बॉडी में जाने की वजह से उनकी मौत हुई है। तो बेचारे वो बता रहे थे कि बाज़ लोग तो दरवाज़ा भी बंद करके बैठ गए। तो अब नहीं मालूम, रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। बड़ी तकलीफ़देह बात है। थैंक यू। अपोजिशन लीडर व सदर बीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव ने गुलजार हाउस आतिशबाजी वाक़े पर शदीद अफसोस का इज़हार किया। इन्होंने कहा है कि ज़ख्मियों के मौसर इलाज के लिए हुकूमत इंतजामात करे, हलाक होने वालों के अफराद ख़ानदान की हुकूमत माली मदद करे। इन्होंने कहा है कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा ना हो, इसके लिए मुसलसल मुतहर्रिक रहते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए हुकूमत इक़दामात करे। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली टी श्रीनिवास गौड़ ने गुलजार हाउस पहुंचकर आतिशबाजी वाक़े की तफसीलात हासिल की। हलाक होने वालों के अफराद ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी किया। इन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा ना हो, इसके लिए अवाम को मुतहर्रिक रहना होगा। आग लगने पर काबू पाने के लिए अवाम में शऊर बेदारी होनी चाहिए। मुस्तक़बिल में हुकूमत भी इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा ना हो, इसके लिए ज़रूरी इक़दामात करें। थोड़े एरिया में वो घरा ज़्यादा रहते, नहीं तो कमर्शियल स्पेस ज़्यादा रहता, तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट के साथ आवाम को भी जिम्मेदारी है। कहीं को बोलो तो पुराने एसियाँ लगा लेके उसमें वो कंप्रेसर फेल हो गया बोल के, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हुआ बोल के, ऐसा सवेरे से बात कर रहे थे। मगर जिम्मेदारी सिटीजन का भी जिम्मेदारी रहता। मैं सबसे गुजारिश है, इंसिडेंट हुआ, मासूम लोग मर गए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए गवर्नमेंट में आगे बढ़ के उनके रक्षा करो। मिस वर्ल्ड मुकाबलों में हिस्सा लेने दुनिया भर से आई हसीनाओं ने इतवार को तेलंगाना पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल का मुशाहिदा किया। शहर व रियासत की सिक्योरिटी पर नज़र रखने आला मियारी असरी टेक्नोलॉजीज से बनाए गए इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हॉल में इन हसीनाओं की आमद पर घुड़सवार पुलिस के दस्तों ने उनका इस्तकबाल किया। पुलिस की पाइप बैंड की धुनों और पुलिस डॉग शो से हसीनाएं महजूज होने लगी। पुलिस के हथियारों की भी नुमाइश की गई। आवाम की सिक्योरिटी के लिए किए जा रहे कामों से उन्हें वाकिफ करवाया गया। कमांड कंट्रोल के मुकम्मल मुशाहिदे और मुख्तलिफ विंग्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के बाद इन मेहमानों के लिए एक तहजीबी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया और मिस वर्ल्ड की सदर नशीन वो CEO जूलिया मोरले ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत आवाम की सलामती को यकीनी बनाने पुलिसिंग के असरी ज़रायों का इस्तेमाल करती है, जिससे आवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की संजीदगी का सबूत मिलता है। इन्होंने कहा है कि मिस वर्ल्ड मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं के लिए यह मुनफरिद नौइयत का तजुर्बा रहा, जहां आवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत किस तरह के इंतज़ामात को यकीनी बनाती है। मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने वाले हसीनाओं ने रियासती सेक्रेटरीट का दौरा किया, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मुकाबला हुस्न की हसीनाओं ने सेक्रेटरीट के रूबरू फ़ोटोकशी की। इसके बाद तेलंगाना सेक्रेटरीट में मौजूद तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इसके बाद हसीनाओं ने तेलुगु तल्ली के साथ सेल्फी ली। मुकाबला हुस्न के हसीनाओं ने एक ही आवाज़ में कहा कि तेलंगाना ज़रूर आना। इसके बाद वहाँ मुनक्किद प्रोग्राम से रियासती चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और वज़ीर जोपल्ली कृष्ण राव ने खिताब किया। हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन का 12वां काफ़िला रवाना हुआ। हज कमेटी के सदर नशीन खुसरो पाशा अफजल बेयाबानी ने 390 आज़मीन हज के काफ़िले को झंडी दिखाई। ये काफ़िला दोपहर 2 बजे रवाना हुआ। इस काफ़िले को रवाना करने के लिए हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना अक़लियती कमीशन के सदर तारिक अंसारी ने हज कैंपस पहुंचकर आज़मीन हज को मुखातिब किया। इस मौके पर
EOH कमेटी सज्जाद अली और दीगर मेंबरान मौजूद थे। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथन ने कहा है कि शहर में झीलों और तालाबों के पास मिट्टी और तामीरी मलबा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा है कि शहर के छोटे पानी के ज़खायर में मिट्टी या फिर तामीरी मलबा डालने पर उनके सबूत के साथ इनको गिरफ्तार किया जाएगा और क्रिमिनल मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। बिल्डर्स, ट्रांसपोर्टर, जिम्मेदारों के साथ हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ ने एक खुसूसी इजलास मुनक्किद करते हुए झीलों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ हिदायत जारी की। तेलंगाना हुकूमत के महकमे लेबर, एम्प्लॉयमेंट और फैक्ट्रीज़ के तहत काम अंजाम देने वाली रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी तेलंगाना और ओवरसीज़ मैन पावर कंपनी ने यूरोप के कदीम मुल्क यूनान में मुख्तलिफ पेशे से वाबस्ता अफराद के तकर्रुरात के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। प्रोडक्शन मिशन ऑपरेटर्स डिग्री डिप्लोमा रखने वाले जिनको 2 साल तजुर्बा हासिल है। इसके अलावा EVAC, पाइपिंग, सीवरेज मेंटेनेंस टेक्नीशियंस, फायर फाइटिंग और प्लम्बर्स की ज़रूरत है। ये एजेंसी हुकूमत के तहत है और ये मुंतखब उम्मीदवारों के लिए बिना किसी खर्च के ये मतलूबा ममालिक को रवाना करती है। उम्र 21 से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। मज़ीद मालूमात टॉमकॉम के दफ्तर वाक़े फूड स्ट्रीट, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद या फ़ोन नंबर 944004 9937 9440052592 से रब्त पैदा किया जा सकता है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस
आप के खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन, एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। गुलजार हाउस की एक इमारत में आतिशज़दगी, 17 अफराद हलाक, कई जख्मी। आग लगने की वजह का पता चलाने तहकीकात का आगाज। सदर मजलिस, इंचार्ज वजीर, मरकजी वजीर और दीगर कायदीन ने मुकाम वाक़े का किया दौरा। आतिशज़दगी वाक़े में हलाक होने वालों की विरसा को फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया। मुस्तकबिल में ऐसे हालात दोबारा रूनुमा ना हो, इसके लिए इक़दामात करें। भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का भी इजहार अफसोस। गुलजार हाउस वाक़े पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हुकूमत से नुमाइंदगी। महलूकीन के विरसा को मुआवजा, जख्मियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाया जाए। इस तरह के वाक़यात का तदारुक हो। और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में हसीनाओं का इस्तकबाल। सेक्रेटरीट में भी आमद, तेलंगाना फिर आना के लगाए नारे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।